Emergency Department ऊंचा बोलो। on 21st of November 2024 with the complaints of left-sided body weakness from last 24 hours. My patient was in usual state of health when he was sitting on the bed. Started feeling sudden onset left-sided body weakness. It was involving both upper and lower limbs, and initially it was associated with slurring of speech, which was improved in after 15 minutes and got recovered totally. And there is no progression of the weakness. There is no aggravating or relieving factors, and there is no associated any feature. On further questioning, my patient has swelling was intact, his speech is intact, and there is no slurring of speech. Initially, it was slurring of speech for 15 minutes, however, after that, it got corrected. And there is no altered state of consciousness associated, or there is no history of fits or any jerky movements of the hands. Patient has history of 1 month back. Patient gives history of pain and bluish discoloration of the tips of the hand of the right side, which was very painful, and bluish discoloration initially, and which gradually turned to blackish. For which he goes to some doctor. He got medication for which a record was not available, and he got relieved by that. And at present, there is a black discoloration of the right middle finger, middle digit as well. He is non-diabetic, non-hypertensive, non-smoker, and no history of ischemic heart disease. There is a mild history of aggressive behavior after the onset of this event. There is no change in mood. The talk is normal. Hearing and vision is also normal. There is no history of fits, associated loss of consciousness, or double vision, or any vertigo, or any spinning sensation, and no oscillatory eye movements. On going to systemic review, there is no history of shortness of breath, cough, orthopnea, or paroxysmal nocturnal dyspnea, no abdominal pain, diarrhea, or any abdominal cramps. However, patient is constipated in the hospital, and he passed stool yesterday with the anemia. Medication he takes on and off sleeping pills. The name of the pill is not known, and he take it occasionally. However, no other medication he was taking in the past. He is not allergic to any medicine, and in the past surgical history, he's had a history of lithotripsy for renal stones 6 years ago, for renal stones. And however, there is no hospitalization and no significant family history of CBA or any other disease. His father was had a diabetes mellitus and chronic kidney disease. He remained on maintenance hemodialysis and got expired 6 years back. He lives in his own house, and it is easy for him to meet both hands. And there is no associated smoking, alcohol, or any drug abuse, no extramarital affairs. Differentials. जी। Based on the history, my differentials include cerebrovascular accident (CVA). It can be either due to hemorrhage or an infarct, and second, it can be multiple sclerosis. So third, it can include space occupying lesion of the brain, and fourth, brain abscess or any. Why you have said कि it is multiple sclerosis? What are the criteria of multiple sclerosis? What thing you got in this patient which made you think this it can be multiple sclerosis? Well, the previous episode Was there any, scattered or lesion in time and space? Did he ever feel any neurological problem in the past? कोई था? Well, 1 month back, he had a episode of village discoloration of the digits. नहीं, that is not the part. That is not neurological manifestation. Other than that, no neurological history. Are you getting? हम लोग क्या डिस्कस करें? Please be with us. ठीक है?
जी, तो how can you say कि it is multiple sclerosis? You said कि it is a cerebrovascular accident. Yes. Cerebrovascular accident is actually not a sort of disease. It is a sequelae of different diseases. It can be, as you said, कि multiple sclerosis can cause CVA, जी. brain abscess can cause CVA, any SOL can cause CVA. So CVA due to what? What comes in your mind first in this patient? Ma'am, taking in account of this history of this patient, as he has no other risk factors, so vasculitis may be the cause. So did in you this mention case. about risk factors in systemic review or any in any part of your Yes, history? ma'am, I took history. There is no history of any hair loss. There is Did no. you ask about कि was he hypertensive, diabetic, hyperlipidemic, smoking history, family Ma'am, history? I have elaborated previously. हाँ, There is no history लेकिन of diabetes, कहने का मकसद ये है hypertension. क्योंकि बेसिकली इट इज नॉट एक्चुअल एग्जाम को समझाने का मकसद ये है कि आपको जब सिस्टमिक रिव्यू जब आप कर रहे होते हैं तो आपने एलेबोरेटली पहले ये चीजें बता दी। मैंने वो मैम पहले बता दिया। दैट वाज हैप्पेजेंट ना आपकी पहली सिस्टमिक रिव्यू की क्या जुमले थे? There is no he is non-diabetic, non-hypertensive, and non-smoker. No history of ischemic heart disease. ठीक है फिर ठीक है सही है जी। आपने कहा जी There is no history of joint pains, any heat or cold intolerance, no history of mouth ulcers or any lumps ये or आपने bumps. मेंशन किया उसमें सिस्टमिक रिव्यू में? अगर किया तो मुझे नहीं मुझे नहीं सुनाई अभी दिया। कर। तो ये आपने करना है ना। आपने अगर वेस्कुलाइटिस बनाया है कि सीवियर ड्यू टू वेस्कुलाइटिस है तो फिर वेस्कुलाइटिस के जो सारे फीचर्स हैं दे शुड कम फर्स्ट इन सिस्टमिक रिव्यू। जी। देखो जितना आप अपने एग्जामिनर को इजी रखोगे ना उतना आसान है। आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि आपने उसको पकी पकाई डिश प्रेजेंट करनी कि सर या मैडम ये मैं सोच रहा था ये चीज रूल आउट हो गई है या ये रूल इन हो गई। ठीक है, आपने रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए नहीं थे। ठीक है, अब आपके जेहन में वेस्कुलाइटिस था तो उससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल मुझे बता दो, पहले बता दो ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्या करना चाह रहा है, इसको रूल इन कर रहा है या रूल आउट कर रहा है। तो आप पकी पकाई सजा मुझे ये ना दिखाओ कि ये चूल्हा है, ये डेगची है, ये चावल है, खुद ही पकाओ। आई कांट, मैं नहीं कर सकती, इतना नहीं मेरे पास टाइम। ठीक है ना, तो आपको ये पहले अब वेस्कुलटाइटिस आपने बताया। अब टेल मी व्हाट वेस्कुलटाइटिस यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन। कौन कौन से वेस्कुलाइटिस हो सकते हैं जो ये कॉज कर सकते हैं? Indian is small vasculitis. Which one? Includes Burgess disease. अब जरा खामोश हो जाएंगे, आप जरा सुन लेंगे। हाँ जी, बर्जेस डिजीज। Burgess disease. ठीक है। Church-Strauss syndrome. So what questions would you like to ask regarding Burgess disease, Church-Strauss syndrome and what else? और क्या होते हैं? स्मॉल वेस्कुलाइटिस है ना आप कह रहे हैं। आगे चलना। और Polyarteritis nodosa. ओके, और And मे बी वेगनर्स। Magnus. ठीक है ना, तो आप इससे रिलेटेड क्या सवाल थे जो कि सिस्टमिक रिव्यू में आप मुझे पहले बता देते। I have asked about any shortness of breath, any wheezing. तो बेटा बताई तो नहीं। थर्ड आपको ये सेकंड जो आपकी थी ना जो रिस्क फैक्टर्स के बाद वो आपको ये बताना चाहिए था कि पेशेंट को देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ वीजिंग, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एनी नमनेस एनीवेयर इन द बॉडी शोइंग मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। कोई उसको डबल विजन वगैरह या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। पैन और वेगनेस के हिसाब से आपको क्या सवाल करने चाहिए? तो आपने किए तो होंगे लेकिन पता नहीं स्कैटर्ड है हिस्ट्री में। इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड बट आई वांट टू से बट आई वांट टू टीच यू राइट हियर इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। क्या सवाल आप करेंगे? क्या सवाल आप करेंगे? मैडम वेगनेस में नेजल स्टिफनेस का पूछ लेते हैं साथ, और एब्डोमिनल पेन का लाजमी पूछते हैं, हेमोप्टिसिस पैन में होता है और Hemoptysis. हेमोप्टिसिस का और Kidney. तो वो कहीं आपने पूछी है लेकिन मुझे वो उसमें वो नहीं नजर आया, रब्त नहीं नजर आया। ठीक है ना, ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो चीज आपने ज़हन में बनाई है वो उसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपके एक पैराग्राफ में। ठीक है ना। सो अब आप दोबारा से जरा बताएंगे मुझे कि व्हाट डिड यू आस्क रिगार्डिंग सिस्टमिक रिव्यू ऑफ वेस्कुलाइटिस? Which is your main diagnosis? I will ask about shortness of breath. नहीं, I will नहीं, what did you I ask? I asked about the shortness of breath, any wheezing, any abdominal pain. Was it there or not? No, there was no abdominal. There was no history of shortness of breath. There was no wheezing, and there was no history of abdominal pain. There was no history of numbness or any tingling sensation in the any part of the body. And
No history of nasal No, stuffiness. no history. No history of any ear problem, any eye problem. No. ये सारे आ जाते हैं ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? Hemoptysis, No. ठीक है? There was no history of having hemoptysis. ठीक है. So this was your number one diagnosis. What else? Is there any other diagnosis as well other than vasculitis? और कुछ हो सकता है? Ma'am, second as well brain specific mobile clear हो सकता है. So उसके क्या सवाल आपको पूछने चाहिए थे systemic review में? Any In a weight loss, paragraph. any weight loss, any fever. There was no history of weight loss. There was no history of fever, and there was no history of headache in the past, and early morning vomiting or any numbness or double. तो ये फिर एक पैराग्राफ आता ना आपका नीचे, आफ्टर जो आपका मेन डायग्नोसिस था उसका पैराग्राफ बना के फिर आपने इसका बनाना था ना, जी. ठीक है? सो वो भी नहीं आपको मिला. अच्छा चलो अब Any brain abscess? was he having any fever? Was he having any ear, nose, throat problem जो कि No. मेन सोर्स होता है ब्रेन एब्सेस का? नहीं था ना. सो क्या डीडी आपका है या कोई एक डीडी एक डायग्नोसिस बता दो या लिस्ट बता दो. Ma'am, vasculitis यही है leading to आपका. ओके cerebrovascular ओके, accident. फेयर एनफ. अब आप बताएं एग्जामिनेशन में आपने क्या एग्जामिन किया, क्या मिला आपको और उस पर कोई नैरो हुआ आपका डीडी? जी बताएं. On my examination, his pulse was 90 per minute. It was regular and high volume. आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस हियर. मेरी वीडियो में आ रही होती हैं आपकी चिरपिन. चलो There was all pulses are palpable, and there is no radial and radiofemoral disease, and his blood pressure is 160 over 90 millimeter of mercury इन बोथ आर्म्स. in both arms. And on the extending my examination, there was no carotid fluid. Both carotids are palpable normally, and so on cardiovascular examination. ये There was किसका मोबाइल बोल रहा है? first and second heart sound were normally audible, and there was no added sound in the precordial. Respiratory system was normal. Or going to my neurovascular nervous system, there is a left-sided weakness, and the power is 3 by 5 in the lower limb and 4 by 5 in the upper limb. And the reflexes, dependent reflexes were brisk in the left side, however it was normal on the right side. The bladder on the right side was mute, and the left side it was upgoing, and upper limb reflexes were also brisk as well. And बस तो अब बताओ and क्या there is अपना no history of sensory system is not intact. intact. So would you like to narrow down your differential diagnosis or is it the same? Most likely, I will come to finally cerebrovascular accident Due to vasculitic disease. Okay, okay. I forgot one point. There is a blind discoloration of the That was very important. right digit. That made you think it is because of vasculitis. And अच्छा this is- ये मुझे तो जहाँ तक इसकी हिस्ट्री याद है इसको पहले भी सीवीएस होते रहे हैं जो मैंने पूछा. क्यों जी? इनको पहले भी फालिज का अटैक हुआ है? ये कब, कितनी देर पहले? और वो किस हिस्से का था, सीधा या उल्टा? नहीं, वो तो तकरीबन महीना पहले हुई. वही अच्छा. मैम जो राइट साइड है ना वो ब्लैकनिंग और रेनॉल्ड्स नहीं नहीं, फालिज पूछ रही है. फालिज का मतलब होता है एक हिस्से की कमजोरी. 4 साल पहले होती है। 4 साल पहले हुआ था ना, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ आपकी हिस्ट्री में आ गया, इसको रिकरेंट हो रही है सीबीएस. गेटिंग माय पॉइंट. सो अब आपका डायग्नोसिस तो कोई नैरो नहीं हुआ. एग्जामिनेशन, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? What is your investigation plan? I will go for specific non-invasive investigations. I will go for CT scan of brain. उस पे तो आपको मिल गया इंफार्क्शन. Infarction और hemorrhagic को रूट करते हैं. ठीक है. After that, for workup, I will go for ANA, inflammatory markers, SR and CRP. And ये स्पेसिफिक तो नहीं है, नॉन इन्वेसिव तो है बट इट इज नॉट स्पेसिफिक. जी. CRP will tell you कि some inflammatory process is going on. ठीक है ना. अब वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड भी हो सकता है, सो वो आपको लीड नहीं कर रहा. आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नॉन इन्वेसिव. वो बताएं. carotid Doppler and echocardiography, fasting lipid profile. Considering your first diagnosis, वेस्कुलाइटिस. वेस्कुलाइटिस की बात हो रही है ना, हम जनरल स्ट्रोक की बात. दूसरी जो मिस्टेक होती है बच्चों की वो ये होती है कि वो दे स्टार्ट रिकॉलिंग देयर बुक. Talking about this patient, we're talking about the diagnosis which you made in this patient on number 1.
आपने बनाया वेस्कुलाइटिस। जी। अब आप बता रहे हैं कि वेस्कुलाइटिस की नॉन इन्वेसिव स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन वो आप बता रहे हैं, जी। तो वो बताएं ना, उसमें एको कहाँ आ गई वेस्कुलाइटिस क्या आती है? अगर आती है तो बता दो, क्योंकि हम लोग बड़े थके होते हैं एग्जामिनर्स ना, मतलब सारी उम्र हो गई होती है, तो अगर आप कर सकते हैं जस्टिफाई इसको तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं तो आपसे सुन रही हूँ, मैं खुद दिमाग नहीं यूज़ कर सकती, थक गई, टायर्ड। जी आप बताएं। ये नहीं करा सकते। वो भी नॉन स्पेसिफिक है ना, ANA तो नॉर्मल में भी आ जाता है मरीजों में पॉजिटिव। बेटा आप स्पेसिफिक की बात करो, विच वेस्कुलाइटिस यू आर थिंकिंग एंड व्हाट स्पेसिफिक टेस्ट विल यू डू? मैम बिलाल, एंटी न्यूक्लियर है इसको भी थोड़ी तकलीफ दे लेते हैं, इसने भी देना है इम्तिहान। हाँ, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एनका, एनका यू मीन टू से एनका, ठीक है। अच्छा, वो भी इतनी Cytoplasmic and स्पेसिफिक नहीं है, perinucleotide। ठीक है ना। वैगनर्स के अंदर सी एनका आती है बट नॉट 100% ऑब्वियसली। इस तरह पी एनका किस में आती है? शेल स्ट्रॉस ड्रग स्ट्रॉस में और माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसका नाम भी तुम्हें आने चाहिए, कोई गंदा एग्जामिनर तुम्हें तंग कर सकते हैं। एंटी एमपीओ और दूसरा क्या है? माइलोपेरोक्सीडेज होता है एक वो तो और एमपीओ हो गया ना। पी को आप एमपीओ कहते हैं ना, पी को PR3 पेरीन्यूक्लियर होता है PR3 समथिंग लाइक दैट है। जैसा न्यूक्लियर प्रोटीनेज 3 बड़े फजूल लोग हैं ना, देखो जरा उसको ईओस, अब वो ड्रग स्ट्रॉस नहीं कहते, वो कहते हैं ईओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस, विद पोलीएंजाइटिस। ठीक है। ग्रेनुलोमाटोसिस विद सो मे बी एनका वो भी इतनी स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा चलो फिर आगे चलो, होटल्स एंजियोग्राफी कहाँ? आर्टेरियल ऑफ द इस पे उसने भी हाई कर दिया। इट्स इनवेसिव। जी बेटा आप भी बताएं ना, थोड़ा सा आप भी कंट्रीब्यूट कर लें, आपका टाइम तो नहीं हो गया बच्चे वाला? नहीं हाँ अच्छा चलो। हाँ अच्छा मैडम वेस्कुलाइटिस के लिए एनका ही होती है ठीक है, और आगे भी तो चल पड़ो ना। स्पेसिफिक कोड स्पेसिफिकली जो है वो बायोप्सी या फिर वो करके देख ठीक सकते है। हैं। अच्छा तो बायोप्सी किस तरह करेंगे? जैसे ये मरीज है, आप बताओ ना, फिजिबल, मेक इट फिजिबल, हमें बताओ। हमने आपको ये केस दिया ही इसलिए है कि हमें हेल्प आउट करो। चलो बताओ क्या करें? एनका तो ये अफोर्ड नहीं करता है जी, ऐसा ही है। किसका मरीज है ये? आयशा का, तकवीन का। एनका तो ये नहीं अफोर्ड कर रहा ना, अब क्या करें बताओ जी? रियल लाइफ सिचुएशन है, बताओ जी रज़ा। अच्छा उसमें तो पता चल गया कि जी आ रही है, टर्बुलेंस आ रही है, अब क्या करें? सबर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना क्या? स्टीरॉइड स्टीरॉइड। अच्छा ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग? देते जाएं। 1 milligram per kg के हिसाब से for 4 weeks and then taper off in further 8 weeks. और वो फिर रिलैप्स हो जाएगा। In the meanwhile, I will put on the immunosuppressants. इज इट पॉसिबल और फिजिबल कि किसी तरीके से हम इसकी कोई बायोप्सी वगैरह ले सकें? इज इट पॉसिबल? व्हाट अबाउट MRA हो सकती है, MRA से हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। और एनीथिंग एल्स दैट कम्स इन योर माइंड? सीटी एंजियो CT एंजियोग्राफी वो जरा कम इन्वेसिव, इसमें बहुत नींद आ रही है मुझे पता है जी। कोई बायोप्सी, इज इट पॉसिबल? आई नीड ऑल ऑफ यू, क्योंकि द रीजन बीइंग दिस कि एक तो हम इनकी लर्निंग भी करवा रहे हैं, दूसरा दिस वाज अ स्पेशल केस व्हिच आई हैव गिवन देम मतलब पर्पसली, क्योंकि वी वांटेड टू डिस्कस इट एज वेल कि इसके लिए क्या फिजिबिलिटी इन आवर सेटअप। यहाँ पर मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ कि जो आप फैंसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं वो हमारे सेटअप में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ रहते हुए मुझे बताओ ना क्या करें? सो आई नीड ऑल ऑफ यू पीपल्स इनपुट इन दिस। बोलो स्पीक अप। सारे 1000 रुपए डाले हैं बेटा 1000 क्या, मैंने तुम लोग डोनेशन 500 रुपया ना दो बल्कि क्या। अच्छा बोलो क्या करें फिर इसका? MRA CTA होता है यहाँ? होता है करवा सकते हैं हम? तकमीम क्यों हो सकता है? अच्छा चलो ठीक है। बायोप्सी के बारे में क्या, स्किन वालों को इन्वॉल्व करें, क्या करें? सर्जन को इन्वॉल्व करें? वास्कुलर सर्जन नहीं है ना, करने वाली बातें ना करें, करने वाली बातें करें। आज हम अगर इस मरीज को लेकर आए तो इसका भी कोई भला करके जाए। CTA MRA के बारे में आप पता करेंगे जी। व्हाट नेक्स्ट? सर्जन कुछ कर सकते हैं जब वो काटे इसकी उंगली? कैन ही टेक बायोप्सी? कैन वी डिस्कस इट विद द सर्जन?
Yes, मे ma'am. बी ठीक है, करनी पड़ेगी पीछे से तो आफ्टर पे वैसल पहले अगर या स्किन वालों से हम बात कर सकते हैं। स्किन वाले वैसल की बात नहीं है। सुपरफिशियल स्किन बायोप्सी नहीं होगी। हाँ स्किन बायोप्सी नहीं है। अच्छा, सो दिस इज ऑल, मतलब हमारे सेटअप में रहते हुए यही हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन प्लान है मेरी नाक को शकल के मुताबिक। अगर आप लोग को इनपुट देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। इट वाज अ मल्टीपर्पज क्लास बेसिकली ना। हाउ वुड यू मैनेज मीनवाइल जब तक ये टकरे मार रही है सर्जन से और रेडियोलॉजिस्ट से और वो हत्थे नहीं आ रहे, अब मरीज जो है उसको पेन दर्द हो रही है इनको हाथ में, जहाँ उंगली इनकी काली है, सर में भी दर्द है, उंगली भी काली है, क्या करें? हाउ विल यू मैनेज? Initially, I will start discipline. 300 milligram for 21 days. After that, I will shift to the antiplatelets, clopidogrel, and meanwhile, seeing his bleeding scores, उसको देखते हुए मैंने इसको एंटीप्लेटलेट स्टार्ट करेंगे। लेकिन शावर से आ रहे हैं। नहीं अभी कर देंगे, अभी तो वो आया बेचारा। कितने दिन आपको हुए हैं आए? 21 तारीख को। 21 तारीख को आए। ये कॉलेज हुए हुए कितने दिन हो गए हैं? कॉलेज 7 days हो गए। 7 days में आप एंटीकोगुलेट कर देंगे? 14 नहीं 14 days के बाद। तो आफ्टर फिर- 14 days। फंसाने वाली बातें नहीं करते हो। आफ्टर 14 days हो हाँ, गए। क्यों? वेस्कुलाइटिस में एंटीकोगुलेशन का रोल है। वो एट्रियल फिब्रिलेशन होगी तब होगा। देखा जो बच्चा वहां बैठा हुआ है जो एग्जाम सिचुएशन में नहीं, कैसे वो मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। आपने देखा? यू सी, मैडम मैंने भी इसको एग्जाम देखो देना। और उसको देखो। हाँ, एट्रियल फिब्रिलेशन देखो, ग्लो आया हुआ चेहरे पे ना, नेचुरल ग्लो। वेस्कुलाइटिस में तो बेटा नहीं करते। तो ये फिर वो आपको मिली कोई फिर क्लॉट मिला, कोई इकोकार्डियोग्राफी हुई थी, तो फिर इसका बताओ ना प्लान क्या करना है। तुमने ये नहीं बताया कि इसको रेनॉल्ट फिनोमिना था या ब्लू हुई और फिर काली हो गई, या रेनॉल्ट फिनोमिना होता रहता था? प्रीवियस इसमें कोई हिस्ट्री नहीं थी और एक्सपोजर टू कोल्ड एंड कोल्ड वाटर हाथ होते हुए वो नहीं था ना, डायरेक्ट ये फर्स्ट तो बताओ ना फिर क्या ये करेंगे? फर्स्ट एपिसोड है। मैम स्टेरॉइड चाहिए 1 milligram per kg prednisolone स्टार्ट करेंगे फॉर 1 month फॉर 4 weeks एंड फॉर व्हिच वेस्कुलाइटिस यू आर टॉकिंग अबाउट? स्मॉल वेस्कुलर अच्छा ठीक है, 1 महीने के लिए दे दोगे विदाउट एनी स्टीरॉइड स्पेरिंग ड्रग? स्टीरॉइड इज साइक्लोफॉस्फेमाइड साइक्लोफॉस्फेमाइड एमेरॉन तो दो ना, उसको ओवरलैप करो। क्योंकि अगर इसके बावजूद भी ये सारे टेस्ट करवाने के बाद भी हमारे पास कुछ ना आया हाथ, जिसके कभी चांसेस हैं कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ना सर्जन ने हमें लिफ्ट करवानी है ना इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने लिफ्ट करानी है, सो हम ये कर सकते हैं फॉर हिम क्योंकि इज हैविंग रिकरेंट सीवीए। और दिस इज अ डबल एज सॉर्ड, आई एम टेलिंग यू। साइक्लोफॉस्फेमाइड हैज इट्स ओन हैजर्ड्स, लॉट्स ऑफ हैजर्ड्स। पहली बात तो इसकी अवेलेबिलिटी, ये कितना महंगा होता है टीका? क्यों भाई? उसने फौरन गूगल निकाला। ऑनको वालों के पास होता है, इसके साथ इसकी मॉनिटरिंग होती है, ये मरीज नहीं अफोर्ड कर सकेगा, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? इसको क्या देंगे? एजाथाइप्रिन देंगे, उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, जी ठीक है ना? तो फिर आप क्या इसका बनाओगे फॉलो प्लान? क्या क्या चीजें, व्हाट विल यू एडवाइस दिस पेशेंट की, क्या क्या ये करवाए, कब कब आपको मिले? I will advise start administering steroids and I will put her on the azathioprine for anti-steroid sparing drug as I have to take taper off the steroids and I will advise him to take a follow-up after 2 weeks. With what investigations? Ma'am, complete blood count and liver function test ये करवा के लाएंगे और PT और INR. So how will you counsel the patient? Last part. मैम काउंसलिंग में मैं हूँ मरीज आपके जी। सामने। Look doctor, what I am suffering from, I don't know what I have. I am having recurrent attacks of weakness. Sometimes in my right half of the body, sometimes in the left half of the body, and my finger has also gone black. My other fingers are also aching. What to do? What I am suffering from? I can understand in your perspectives. It is really a worrisome situation for you. However, I will explain. ऊंचा थोड़ा सा बोलो। However, I will explain you the whole everything about your disease and its further management plan. First of all, it is some kind of inflammation of the blood vessels. What is inflammation? I don't understand what you are talking about. In This is very important. Yes. Layman language में बोलें
ठीक है, आप उसको कहें कि तुम्हारी जो सोजिश- खून की नालियां हैं उनकी उनकी नालियां सोजिश उनकी है, सोजिश हुई हुई है, हाँ। जिसकी वजह से बार बार And we don't know the reason. और हमें Yet we have to investigate कि what is the reason. लेकिन meanwhile, just to give you a temporary relief because it will take time for your investigation to be carried out. You know, we have to take time, and then they give you time. So meanwhile, to relieve your symptoms, we are going to start some drugs which will help in relieving this inflammation, and it can be continued maybe for 4 weeks, and along with this we will add another drug because we cannot continue steroids for very long. It has got its own side effects. So we will add another drug, and for that drug we will need certain monitoring of your blood tests. That can be like your complete blood picture. We might be needing that after 1 month, and your liver function test we might be needing them. So you have to continue coming to us for regular follow-up, because the drugs which we are giving to you, they can have their own side effects. So we will continuously monitor your condition, and we will also keep an eye over your tests. And the drugs which we are giving, they might affect your blood test as well. So we will also keep an eye on them. So we are hopeful might be you will not suffer from another attack, and we can save rest of your fingers. But as far as this finger is concerned, the portion which is dead, it might need to be cut. Okay, by a surgeon. So this is how we will explain. Okay. Any questions? साइकिल 500 का है 1 ग्राम 500 रुपए का ना, मरीजों के पास 500 नहीं होते, 5500 मेरे पास भी नहीं है। एनी क्वेश्चंस? कोई चीज ना समझ आई हो, कोई इख्तलाफ राय हो, कोई चीज ऐड करना चाहें आप? बिलाल, रजा, तलहा, एनी हाउस ऑफिसर, बाबर, अमीर हमजा, हशाम, हसीब, समरा। मैम स्टेरॉइड का आपने बताया कितने टाइम के लिए देना स्टेरॉइड? स्टीरॉइड जो है ना सिर्फ टेम्परेरीली हमने देना है, जब तक कि हमारे पास रिपोर्ट्स ना आ जाएं। एट द मैक्स आप 1 महीना दे सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना दें। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल देखो आप जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जब आप एग्जाम दे चुके होते हो और आपको एक डिपार्टमेंट हेड करना पड़ रहा होता है या आपको एक वार्ड को देखना पड़ रहा होता है, तो देन यू हैव टू मेक योर ओन जजमेंट्स कि रफली इसके लिए ये चीज़ जो है वो कितनी देर तक फ़ायदेमंद हो सकती है।